Assalamu alaikum dear students. You know that in previous lecture we concluded the concept of the accounting equation. I hope you worked well at home and I will be waiting for your response for the questions that I will have to solve. But I have already said that you will have to do a lot of homework and it is impossible, it is rarely possible to solve all the questions of the textbook in these online classes. So I will be waiting for your response. So today, now we have completed the concept of accounting equation. So today we will be starting another concept, another unit, that is rules for debit and credit. Rules for debit and credit. Rules of debit and credit or rules for debit and credit. Today we will be discussing it. You know, before discussing this concept, let us discuss what this debit and credit in common sense mean. What these terms mean in common sense. You know that in common sense, we refer those things. We say credit for those things, or we give credit to those things that are appreciable. That means we can say that in common sense, credit means plus items, those items which are plus items, appreciable, applaudable. You know that. And debit, it is opposite. This is the common sense. In common language, debit and credit mean. Credit means plus items, appreciable items. Credit means it, and debit means those things which are minus items, which are not appreciable, not applaudable. You know that. This is the common sense. But in accounting, these two terms have different connotations, different meanings. In accounting, these two terms, debit and credit, carry different meanings. Firstly, before discussing the accounting concept of this debit and credit, firstly, let me clear one thing here, that for credit we write CR and for debit we write DR. You know that in debit, in this term, there is no alphabet R. The alphabet R is used nowhere in this term. But why we write DR for this debit? Why we write this symbol DR and CR? You know that if you go to the development of concept of accounting, if you go to the history of development of concept of this accounting, you will find there that this concept was developed much earlier in 1494 in Italy. So in Italian language, debit, in Italian language, this is the English meaning of this debit. This is the English term debit. But in Italian language, this debit is termed as addebitare. Addebitare. That is why these symbols are taken from that Italian language, and in Latin language, this debit is written differently, debere. So there is no need to be confused about this, the symbols of this debit and credit. These symbols are related to the other languages, because the concept of this accounting was developed much earlier in 1494 in Italy, in Italian language, when Lico Pacioli wrote that book. You will be knowing that De Computis et Scripturis or Summa de Arithmetica.
and these symbols are taken out from those books. That is why we write CR and DR. And I already discussed in common sense what credit means and what debit means, plus and minus. But in accounting, these two terms carry different meanings. To understand the concept of debit and credit, to understand the meaning of these two terms, firstly, what we will have to do, simply just go. So now we will be discussing this debit and credit in accounting terms. What does these two terms mean in accounting? To understand the meaning of debit and credit from the point of view of accounting, what we will have to do first go to the accounting concept of dual aspect concept. Dual aspect concept. You know that there are 10 accounting concepts and there are 4 conventions. Out of those 10 concepts, one concept is the dual aspect concept. That dual aspect concept, what does that say? What does that concept tell us? Dual aspect concept tells us that each and every business transaction has 2 aspects. Each and every business transaction has 2 aspects. One is the receiving aspect and another is giving aspect. You know that each and every business transaction has 2 aspects. One aspect is receiving aspect and another is giving aspect. Dual aspect concept says us that each and every business transaction has 2 aspects. One is receiving aspect, another is giving aspect. You already know that. For example, purchase of goods for cash. हमने कैश में गुड्स परचेज किए, यहां से हमने कैश दिया, गिविंग आस्पेक्ट, वहां से गुड्स रिसीव किए, रिसीविंग आस्पेक्ट. रेंट हमने पे किया, यहां से हमने पैसा पे किया रेंट, वहां से हमने रिसीव क्या किया, बेनिफिट्स, जिसके लिए हमने रेंट पे किया. जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट. रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट. एंड दिस कंसेप्ट tells us that receiving aspect is always equal to giving aspect. This receiving aspect is always equal to giving aspect. ठीक है ना? तो यहां तक हमें ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए, डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को समझने के लिए, कॉमन सेंस में डेबिट और क्रेडिट मैंने बताया किसको कहते हैं, डीआर एंड सीआर सिंबल्स हम यूज क्यों करते हैं वो भी मैंने बोला. अब मसला है डेबिट और क्रेडिट को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना चाहिए ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की तरफ. देयर आर 10 concepts of accounting and one concept is dual aspect concept. Dual aspect concept says us that each and every transaction has 2 aspects, receiving and giving aspect. Receiving aspect is always equal to giving aspect. अब जो रिसीविंग एस्पेक्ट है या गिविंग एस्पेक्ट है, समटाइम्स हम इस रिसीविंग एस्पेक्ट को डेबिट देते हैं, समटाइम्स वी गिव क्रेडिट टू दिस रिसीविंग एस्पेक्ट, समटाइम्स वी गिव डेबिट टू दिस गिविंग एस्पेक्ट एंड समटाइम्स वी गिव क्रेडिट टू दिस गिविंग एस्पेक्ट. कॉमन सेंस में डेबिट और क्रेडिट किससे कहते थे हम, क्रेडिट होता था प्लस. अब अगर हम देखेंगे कॉमन सेंस को इसके साथ रिलेट करेंगे तो यहां पर रिसीविंग एस्पेक्ट को हमेशा क्रेडिट मिलना चाहिए था प्लस, और गिविंग एस्पेक्ट को हमेशा डेबिट मिलना चाहिए था. बट रिसीविंग एस्पेक्ट को हम किसी वक्त डेबिट देते हैं, किसी वक्त रिसीविंग एस्पेक्ट को क्रेडिट भी दे सकते हैं, किसी वक्त हम गिविंग एस्पेक्ट को भी डेबिट दे सकते हैं, किसी वक्त गिविंग एस्पेक्ट को भी क्रेडिट देते हैं. जिस वक्त हम रिसीविंग एस्पेक्ट को डेबिट देंगे उस वक्त हमें गिविंग एस्पेक्ट को क्या देना है, क्रेडिट देना है. जिस टाइम हम गिविंग एस्पेक्ट को डेबिट देंगे उस वक्त हमें रिसीविंग एस्पेक्ट को क्रेडिट देना है. अब हम किस वक्त हम रिसीविंग एस्पेक्ट को डेबिट देते हैं और किस वक्त हम रिसीविंग एस्पेक्ट को क्रेडिट देते हैं, किस वक्त हम गिविंग एस्पेक्ट को डेबिट देते हैं
और किस वक्त हम गिविंग एस्पेक्ट को क्रेडिट देते हैं, उसके लिए हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं। फॉर दैट पर्पज हमारे पास अकाउंटिंग में रूल्स है, रूल्स फॉलो करने हैं, उसके लिए हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड टू अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, just go to the accounting concept of dual aspect concept. Dual aspect concept says us that each and every business transaction has two aspects, receiving and giving aspect. Receiving always is aspect is always equal to giving aspect. Sometimes we give debit to the receiving aspect and sometimes we may give credit to it. Sometimes we give debit to giving aspect, sometimes we may give credit to it. When we give debit to the receiving aspect, we will have to give credit to giving aspect. And when we give debit to giving aspect, we will have to give credit to receiving aspect. And जब हम receiving aspect को डेबिट देंगे, गिविंग aspect को क्रेडिट देंगे, तो हम कह सकते हैं डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिटर्स। यहां पर भी डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिटर्स। तो हम किस वक्त इसको डेबिट देते हैं, किस वक्त क्रेडिट देते हैं, हम गिविंग एस्पेक्ट को किस वक्त डेबिट देते हैं, किस वक्त क्रेडिट देते हैं, किस टाइम पर हमें डेबिट देना चाहिए, किस टाइम पर हमें क्रेडिट देना चाहिए इन एस्पेक्ट्स को, इसके लिए हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं। इसके लिए हमारे पास रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इसके लिए हमारे पास लगे हुए हैं। वो जो रूल्स हैं, वी गॉट रूल्स टू गिव दिस डेबिट एंड क्रेडिट टू द टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब वो जो रूल्स हैं, हमारे पास रूल्स जो है, उन रूल्स को हम स्टडी करते हैं टू डिफरेंट अप्रोचेस में। वी स्टडी दोज रूल्स इनटू टू डिफरेंट अप्रोचेस, अंडर टू डिफरेंट अप्रोचेस। वी नो दैट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट, रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट। समटाइम्स वी मे गिव डेबिट to the receiving aspect, we can also give credit to receiving aspect. We can give debit to giving aspect, we can also give credit to giving aspect. ठीक है ना। जब हम एक को डेबिट देंगे तो दूसरे को हमें क्रेडिट देना है, जब हम एक को डेबिट देंगे दूसरे को क्रेडिट देना है। डेबिट कब देना है, क्रेडिट कब देना है, इस एस्पेक्ट को, उसके लिए हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं। अब जो रूल्स हैं, हम उन रूल्स को स्टडी करते हैं अंडर टू डिफरेंट अप्रोचेस। वी स्टडी दोज रूल्स अंडर टू डिफरेंट अप्रोचेस। The first approach is traditional approach. Traditional approach. And the second approach is modern approach. हम इन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हमारे पास जो है, हम इनको स्टडी करते हैं अंडर टू डिफरेंट अप्रोच। द फर्स्ट अप्रोच इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच। यू नो दैट व्हाट ट्रेडिशनल मीन्स। ट्रेडिशनल हो गया जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच जो आया था वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। सबसे पहले हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टडी करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या कहता है इन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। फर्स्टली लेट अस टेक दिस ट्रेडिशनल अप्रोच। लेट अस सी अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच हाउ वी गिव डेबिट एंड क्रेडिट टू दी टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। दिस ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, दिस ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इट इज बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ये तमाम जो अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में उनको क्लासिफाई करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच बिजनेस में जो तमाम अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, हर अकाउंट को ये क्लासिफाई करता है। दैट इज वाई वी से दैट दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स दिस अप्रोच क्लासिफाइज अकाउंट्स अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। ठीक है ना। दिस अप्रोच classifies accounts into different types. Into how many types? This approach classifies accounts into two types. This approach says that accounts are of two types: personal accounts and impersonal accounts. Personal accounts and
impersonal accounts. This approach tells us that accounts are of two types, personal accounts and impersonal accounts. अब पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल डिफरेंट है डेबिट और क्रेडिट देने का, और इम्पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल्स डिफरेंट हैं डेबिट और क्रेडिट देने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखिए पर्सनल अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब अकाउंट्स का मतलब यहां पर अकाउंट्स जो टर्म अकाउंट आ गई, यू नो दैट व्हाट दिस अकाउंट मीन्स समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, उसको हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट का डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम डेबिट देते हैं, राइट हैंड साइड में हम क्रेडिट देते हैं। हम कहा कौन किस ट्रांजेक्शन को हर अकाउंट के लिए हम किस वक्त डेबिट देंगे किस वक्त क्रेडिट देंगे, वो रूल्स हम सीखने जा रहे हैं। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दिस अप्रोच क्लासिफाइज अकाउंट्स into two types. This approach classifies accounts into two types, personal and impersonal accounts. Personal and impersonal accounts. अब हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हो? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which affect persons. Personal accounts are those accounts which affect persons. Which affect persons. वो अकाउंट जो पर्सनस को इफेक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। अब ये पर्सन क्या हो गए? अकाउंटिंग में पर्सन किसे कहते हैं? अब हम ये देखेंगे। अकाउंटिंग में पर्सन उस एंटिटी को कहते हैं which can do business transactions on its own. You know that a person in account. अगर हम कॉमन सेंस में देखेंगे पर्सन, आई एम ए पर्सन, someone else is a person. पर्सन हमें पता है कॉमन सेंस में पर्सन किसे कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में पर्सन की डिफरेंट मीनिंग है। अकाउंटिंग में पर्सन की मीनिंग ये है वो चीज जो खुद ट्रांजेक्शन कर सके, ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, उसको हम पर्सन कहते हैं। अब अगर हम अकाउंटिंग में देखेंगे, अकाउंटिंग में मैंने आपको डेफिनेशन कही, पर्सन इज दैट एंटिटी विच कैन डू और विच कैन एग्जीक्यूट बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय इट्स ओन ऑन इट्स ओन, दैट इज कॉल्ड ए पर्सन। अब अगर हम अकाउंटिंग में देखेंगे कौन कौन सी चीज जो है वो खुद ट्रांजेक्शन कर सकती है, ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को। अब अगर हम देखेंगे तो पर्सन को क्लासिफाई करता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सन को क्लासिफाई करता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। Traditional approach says us that persons are of three types: natural persons, artificial persons, and representative persons. This approach tells us that there are three types of persons which can conclude, which can execute, which can do business transactions on their own. The first type is natural person. Common sense. We know that among natural persons only human beings can do business transactions. जो नेचुरल पर्सन है उनमें से सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही क्या कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिजनेस आई मीन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम देखेंगे नेचुरल पर्सन जो है उनमें से ह्यूमन बीइंग्स के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बट ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन डू बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स दैट ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी, विच इन्वॉल्व्स the pecuniary interest, which involves pecuniary interest. That transaction in which pecuniary or monetary interest is involved is called a business transaction. And among natural persons, you know that only human beings can do the business transaction. So natural persons में अगर हम देखेंगे तो किसी का भी नाम राम, एक पर्सन है राम इज अकाउंट। राम जो है ये एक नेचुरल पर्सन है, उसके अकाउंट को हम कहेंगे
दिस इज ए पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, Sham's account, Mr. Rashid's account, Mr. Rahim's account. These are natural persons who have done these transactions or who can do business transaction. तो किसी भी इंसान का नाम जो होगा बिजनेस में उसको हम नेचुरल पर्सन लेंगे, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. सेकंड टाइप इज आर्टिफिशियल पर्सन. Artificial persons are those persons which are not human beings, but they can do business transactions. They can in case of business, और हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं. अगर हम बिजनेस की बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, दे एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स. दोज पर्सन्स which can act like human beings from the point of view of business, from the point of view of they can act like business like human beings but from the point of view of business only. वो पर्सन, वो आर्टिफिशियल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग की तरह बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सके, जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सके, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. दोज पर्सन विच एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स बट दे आर नॉट एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस दे एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनीज अकाउंट. जब हम कोई फॉर एग्जाम्पल हमने ये मार्कर या मैंने ये टी शर्ट परचेज की, जब मैं ये टी शर्ट परचेज करता हूं तो ये फॉर एग्जाम्पल एडिडास की है या नाइकी की है. जो नाइकी में जिससे मैंने ये परचेज की, जिस सेल्समैन से, जिस मैनेजर से जो वहां पर था बंदा जिससे मैंने ये परचेज की, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने मिस्टर रशीद, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड से ये टी शर्ट परचेज. मैं कहता हूं ये टी शर्ट नाइकी की है. दैट मीन नाइकी इज ए बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन एंड दैट नाइकी डिड दिस ट्रांजेक्शन विद मी. उसने नाइकी ने बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरे साथ की. फॉर हम बैंक पर जाते हैं लोन लेने, मैं कहूंगा बैंक अकाउंट. बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. मैं बैंक पर जाऊंगा लोन लेने, मैंने बैंक से लोन लिया. जब मैंने 2 लाख 3 लाख बैंक से लोन लिया तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे फलानी बैंक मैनेजर ने लोन दिया, ये मुझे मैनेजर का कर्ज है. मैं कहता हूं ये जेके बैंक का कर्ज है, ये जेके बैंक का लोन है. दैट मीन्स जेके बैंक डज दीज ट्रांजेक्शन. ठीक है ना. जिस तरह राम, श्याम, रशीद एटसेट्रा ने ट्रांजेक्शन की, इसी तरह कंपनी ने ट्रांजेक्शन की, इसी तरह बैंक ने ट्रांजेक्शन की. तो जो भी कंपनी हो, कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट जो होता है या बैंक का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट,